नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी ज़िले में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल कॉम्प्लेक्स का रखा संग बुनियाद। हैड्रा और मूसी प्रोजेक्ट पर अपोजिशन के एतराज़ात। हुकूमत ने असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने का किया फैसला। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने डीएसपी की हैसियत से आज संभाल लिया चार्ज। दशहरा त्यौहार के बायस चोटुप्पल के करीब हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक जाम। रियासत भर में आज 28 इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल्स का रखा गया संग बुनियाद। बांग्लादेश और टीम इंडिया के खिलाड़ियों की हैदराबाद आमद। दोनों टीमों के दरमियान कल होगा मैच। तेलंगाना उर्दू एकेडमी में बदनज़मी उरूज पर। चेयरमैन की अदम दिलचस्पी से अमला और अदबी तबका परेशान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज जुमा को रंगारेड्डी ज़िले के कोंदूर गांव में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। हुकूमत इस साल इन रिहायशी स्कूलों की तामीर पर तकरीबन 5000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तजवीज़ करदा इदारे बैनुल अक़वामी मियारात के मुताबिक 12वीं जमात तक अंग्रेज़ी मीडियम तालीम फराहम करेंगे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया। बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा ने आज तेलंगाना भर में 28 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। अय्या नी इष्टम నువ్వు బీఎస్పీలు ఉంటావా బీఆర్ఎస్లకు పోతావా ఏ రాజకీయ పార్టీలు ఉంటావో మాకు అభ్యంతరం లేదు, నీ ఇష్టం, నువ్వు ఏ రాజకీయ పార్టీలను. కానీ గురుకులాలకు సెక్రటరీగా పనిచేసిన మీరు ఇవాళ ఒక గొప్ప రెసిడెన్షియల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ని 25 ఎకరాలలో 125 నుంచి 150 కోట్లతోటి మా షాద్నగర్ బిడ్డలకు అందిస్తుంటే మీరెందుకు అభ్యంతరం చెప్తున్నారని నేను అడగదలుచుకున్న మిత్రుడు ప్రవీణ్ కుమార్ను. బీఆర్ఎస్లో చేరంగానే మీరు కూడా వారిలాగా మారినరా? పేదలకు చదువు అందొద్దని మీరు భావిస్తున్నారా? ఏ దొరలు పేదలకు విద్యను దూరం చేసినరో, ఏ దొరలు పేదలకు వైద్యాన్ని దూరం చేసినరో, ఏ దొరలు బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు, ఎస్సీలేమో చెప్పులు కుట్టుకోవాలి, బీసీలేమో చేపలు పట్టుకోవాలి, గొర్రెలు బర్రెలు పెంచుకోవాలి, ఎస్టీలేమో పందులను పెంచుకోవాలని పథకాలు పెట్టిన చంద్రశేఖరరావు పక్కన చేరి ఈరోజు మీరు కూడా మా బలైన వర్గాల సోదరులు బర్రెలు గొర్రెలను పెంచుకోవాలి, చేపలు పట్టుకొని బతకాలనా? మా దళిత సోదరులు చెప్పులు కుట్టుకొని బతకాలనా? మా ఎరకల సోదరులు పందులను పెంచుకొని బతకాలనా? చంద్రశేఖరరావు ఏదైతే చెప్పిండో ఇవాళ నువ్వు అదే మాకు నేర్పించదలుచుకున్నావా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గాని నేను అడుగుతున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ కోరి అధికారం ఇచ్చిన చంద్రశేఖరరావు తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువకులకు ఏమిచ్చిందంటే, మీకు చదివేందుకురా, మీకు హోదా ఎందుకురా, మీరు డాక్టర్లు లాయర్లు ఇంజనీర్లు అవుతారా, మీ ముఖానికి బర్రెలు కాసుకోండి, గొర్రెలు కాసుకోండి, చేపలు పట్టుకొని బతుకుండ్రి, గౌడన్నలు ఈదులు గీసుకొని బతకండి అని ఆయన చదువు నేర్పుతున్నాడు చంద్రశేఖరరావు. ఎన్నిసార్లు అన్నాడు మీరు చూసారు కదా, పేదలకు గొర్రెలు బర్రెలు ఇవ్వాలని. ఎవడొద్దన్నాడా? చదువుకున్నోనికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలని ఎవడన్నా చెప్పిండా? ఏ రోజన్నా చంద్రశేఖరరావు చదువుకున్న పిల్లగానికి డాక్టర్ చదువుకోనికి డాక్టర్ కొలువు, లాయర్ చదివినోనికి లాయర్ కొలువు, ఇంజనీర్ చదువుకున్నోనికి ఇంజనీరింగ్ కొలువు, పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పే టీచర్లు చదువుకున్న వాళ్ళకి టీచర్ల కొలువులు ఇవ్వాలని ఎవరన్నా చెప్పిండా? మన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 90 రోజుల్లో 30,000 మందికి ఉద్యోగ పత్రాలు ఎక్కడ ఎల్పీ స్టేడియంలో మనం ప్రమాణం చేసినామో అక్కడనే 30,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం. నిన్నగాక మొన్న మన ప్రభుత్వం వచ్చిన 65 రోజుల్లో 11,000 మంది టీచర్లకు ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు ఇచ్చినాం. ఇది మన విధానం. పిల్లలకు చదువు చెప్పడం మన విధానం, పేదలకు వైద్యాన్ని అందించడం మన విధానం, బలైన వర్గాలకు మంచి ఆశ్రమ పాఠశాలలు కట్టడం మన విధానం, కులాల మతాల మధ్య వైషమ్యాలు తగ్గించడం మన విధానం. కానీ చంద్రశేఖరరావు విధానం గొర్రెలను బర్రెలను చేపలను చెప్పులు కుట్టుకునే వృత్తులు మీరు జీవితకాలం ఉండండి,
మా కొడుకు బిడ్డ మాత్రం రాజ్యాలు ఏలుకుంటారు, మా కొడుకు మంత్రి కావాలి, మా బిడ్డ ఎంపీ కావాలి, మా సడ్డకుని కొడుకు రాజ్యసభ కావాలి, మా అల్లుడు ఇరిగేషన్ మంత్రి అయ్యి 1000 కోట్ల దోసుకోవాలి, లక్ష్మీదేవిపల్లిలో కట్టాల్సిన ఇక్కడ రిజర్వాయర్ కట్టకుండా ప్రజల్ని నిండా ముంచాలన్న ఆలోచన। अपोजिशन जमातों की जानिब से हैड्रा और मूसी प्रोजेक्ट को लेकर तनकीद का निशाना बनाए जाने पर रेवंत रेड्डी हुकूमत ने असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने का फ़ैसला किया है ताकि हक़ाइक़ आवाम के सामने पेश किए जा सकें। हुकूमत ने हाल ही में GHMC तरमीमी क़ानून के ज़रिए हैड्रा को मज़ीद इख्तियारात दिए हैं और आउटर रिंग रोड के 51 मुआवज़ियात को म्यूनसिपैलिटीज़ में ज़म करने के ऑर्डिनेंस भी जारी किए हैं। असम्बली का इजलास अक्टूबर के आखिर या नवंबर के अवाइल में बुलाने का इम्कान है। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने आज तेलंगाना पुलिस में DSP के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने वादे के मुताबिक मोहम्मद सिराज को ग्रुप 1 के तहत सरकारी ओहदा दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में खेलों के फ़रोग़ के लिए अपने अज़्म का इयादा किया, जबकि मोहम्मद सिराज ने इनका शुक्रिया अदा किया। बता दें कि रियासत में यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम पर भी तेज़ी से काम जारी है। इस मौके पर मोहम्मद सिराज के हमरा DGP डॉक्टर जितेंद्र, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव और टेमरी सदर मोहम्मद फ़हीम कुरैशी व दीगर मौजूद थे। टीम इंडिया और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें हैदराबाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच चुकी है, जहां इनका कल शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों टीमों के दरमियान 12 अक्टूबर को कल हैदराबाद के उपल स्टेडियम में T20 मैच खेला जाएगा। इस सिलसिले में स्टेडियम की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि मैच को कामयाब बनाया जा सके। तेलंगाना हुकूमत ने जुमा के रोज़ रियासत में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स के क़याम के मिशन का आगाज़ कर दिया है, जिसका मकसद गरीब और कमज़ोर तबक़ात के बच्चों को आलमी मियार की सहूलतों के साथ मियारी तालीम फ़राहम करना है। रियासती वज़रा भट्टी विक्रमार्का, P श्रीनिवास रेड्डी और कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी व दीगर ने बिला तरतीब खम्मम और नलगुंडा व दीगर अजला में स्कूल्स का संग बुनियाद रखा। रियासत भर में आज 28 इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स का संग बुनियाद रखा गया। हर एक स्कूल 25 एकड़ के वसी कैंपस पर मुश्तमिल रहेगा। ये कैंपस इंतहाई असरी सहूलतों से लेस रहेगा, जहां तालीम और दीगर सरगर्मियाँ रहेगी। हुकूमत का कहना है कि इन स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम की तालीम रहेगी, जहां चहारुम से इंटरमीडिएट तक खेल कूद की तमाम सहूलतें भी रहेंगी। इन स्कूलों में 2560 तलबा को दाखिला दिया जाएगा और स्टाफ की तादाद 120 रहेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि हर असम्बली हलक़े में इस तरह का एक स्कूल कायम किया जाएगा। चोटुप्पल के करीब हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर ट्रैफिक देखी गई, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग दशहरा त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई मुकामात की तरफ रवाना हो रहे हैं। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। हुकाम ने आवाम से एहतियात बरतने और मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। दशहरे की रिवायती रसूमात की तैयारियों की वजह से हुजूम में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। एक हिंदू ख़ानदान में पैदा होने वाली तेलुगु खातून ने उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करते हुए सरकारी उर्दू टीचर की मुलाजिमत हासिल की। इस जय श्री नामी खातून का ताल्लुक़ ज़िले कामारेड्डी के जोकल मंडल के एक गाँव से है। उन्होंने इब्तदाई तालीम बिचकुंदा के उर्दू मीडियम स्कूल में हासिल की और बाद में भांसवाड़ा के एसी हॉस्टल में रहते हुए ज़िला परिषद परिजा स्कूल से 10वीं मुकम्मिल किया। भांसवाड़ा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से इंटर और बोधन के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और B.Ed अज़ां कॉलेज ऑफ एजुकेशन बोधन से मुकम्मिल किया। उन्होंने गुज़िश्ता साल टेट का इम्तिहान कामयाब किया।
जय श्री ने 2024 में DSC इम्तिहान पास करके उर्दू की हैसियत से सरकारी मुलाजिमत हासिल की। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जय श्री ने अपनी पहली ही कोशिश में टेट और DSC इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की। नलगुंडा ज़िले के चिटियाला के करीब कौमी शाहरा 65 पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक जो सीमेंट के थैले लेकर जा रही थी के डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में ट्रक की डीजल टैंक फट पड़ी और आग लगने से ट्रक मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई, जबकि ड्राइवर ने फ़ौरन छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बायस हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक में खलल पड़ा, जबकि फायर सेफ्टी अमले ने पहुंचकर आग को काबू में किया। ఏం లోడ్ అది? ఏడు నుంచి వస్తుంది? సిమెంట్ కోదాడ నుంచి వస్తుంది. సిమెంట్ ఎటు పోతుంది? హైదరాబాద్. దేనివల్ల అయిందా అది? మల్లంపేట పోవాలి, మల్లంపేట మరి అయిపోయింది బండి। तेलंगाना उर्दू एकेडमी का इदारा बराए नाम होकर रह गया है क्योंकि इस इदारे से कोई काम अंजाम नहीं दिया जा रहा है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी जो उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की के लिए क़ायम किया गया है, हालिया दिनों में संगीन बदनज़मियों का शिकार हो चुका है। एकेडमी के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इदारे के चेयरमैन की गैर हाज़िरी और इनकी ज़ाती दिलचस्पियों की वजह से उर्दू एकेडमी के मामलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। चेयरमैन, जिनका ताल्लुक़ निज़ामाबाद से है, ज़्यादातर वक्त अपने आबाई शहर और पार्टी की सरगर्मियों में गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से उर्दू एकेडमी के अहम काम ठप होकर रह गए हैं। एकेडमी में इनके दफ्तर में इनकी गैर मौजूदगी ने अमले और उर्दू अदब से वाबस्ता अफराद को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। दूसरी जानिब सहाफ़ियों को माली इमदाद के लिए दिए गए फॉर्म्स अब तक ज़ेर इल्तिवा हैं और किसी को भी इमदाद फ़राहम नहीं की गई। शोरा और मुसन्निफ़ीन जो अपनी किताबों की इशाअत और दीगर मसाइल के हल के लिए दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और चेयरमैन की अदम मौजूदगी की वजह से वो मायूसी का शिकार है। दफ्तर में इंतज़ामी बदनज़मी और कामों की रफ्तार में सुस्ती ने एकेडमी के असल मकसद को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ये सूरत हाल न सिर्फ एकेडमी के अंदरूनी अमले बल्कि रियासत भर के उर्दू अदब से वाबस्ता अफराद के लिए भी तशवीश का बायस बन रही है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस सूरत हाल का फ़ौरी नोट ले और उर्दू एकेडमी के मामलात को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करें। अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर ज़फ़र ने शांति नगर में इस्लामिक सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अखलाक़ी इक़दार की हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद 75 साल से खिदमत ख़ल्क़, गरीबों की मदद और मुफ्त तिब्बी खिदमात फ़राहम कर रही है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वक्फ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्लिम नुमाइंदगी में कमी जैसे मसाइल पर तवज्जो दी जाए और उर्दू मीडियम के तलबा के साथ इंसाफ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ा वाराना कशीदगी के बाद आसिफ़ाबाद के जैनूर में मुसलमानों के कारोबार, इमलाक और मसाजिद पर हमले हुए, लेकिन तेलंगाना पुलिस की जानिब से मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि रियासत में अमन बरकरार रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सेक्रेटरी हल्का सुलेमान कुरैशी, नाजिम ज़िला संगारेड्डी मोहम्मद सलाउद्दीन बाबर, अमीर मुकामी ज़हीराबाद मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी और मुकामी सेक्रेटरी मोहम्मद मोइनुद्दीन व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए थे। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना अपने मुख्तलिफ यूनिटों में इस तरह की बेनिफिशियल सरगर्मियों को अंजाम देते हुए बड़ी खुशी महसूस है। जमात इस्लामी हिंद तकरीबन 75 साल से इस मुल्क के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रही है और उसकी खिदमत में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मुख्तलिफ मजहबी इकाइयों के दरमियान हमारी पैदा करना, कोऑर्डिनेशन पैदा करना और मोहब्बत और पॉजिटिविटी के माहौल को डेवलप करना। इस काम के लिए दावती मैदान के तहत जमात इस्लामी गैर भाइयों के साथ बैन मजहबी मुकालबात और इंटरफेथ डायलॉग्स और सोशल एक्टिविटीज़, चैरिटी एक्टिविटीज़ बहुत सारे अंजाम देती हैं। हमारी एक्टिविटीज़ में अहम तरीन एक्टिविटी मेडिकल एक्टिविटी है, जिसमें रियासत भर के अर्बन एरिया से नहीं बल्कि रूरल एरिया में भी हम लोग मेडिकल कैंप्स और मेडिकल सर्विस के जरिए से हम लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद में मुस्लिम मेटर्निटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल और मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल जैसे बड़े 4 हॉस्पिटल
काम अंजाम दे रहे हैं। निजामाबाद में भी एक नया हॉस्पिटल बना है। मुझे उम्मीद है कि जहीराबाद की जो यहाँ की इस वक्त मनसूबाबंदी है, हमारे 2 डिवीजनों में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अगला प्रोजेक्ट हमारे पास मेडिकल प्रोजेक्ट हो, जिसमें हम आवाम को यहाँ पर तिब्बी सहूलियात फराहम कर सकें। अल्लाह करे कि इस मुकाम पर एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाने के जहीराबाद के हमारे साथियों को तौफीक अता फरमाए। स्कूल और अपना दिल्ली मरकज़ के अलावा ये एक बड़ा मैदान है जिस पर हम काम कर सकते हैं। मैं इस मौके पर प्रेस के ज़रिए से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी रियासत के अंदर जो कांग्रेस गवर्नमेंट को जमात इस्लामी हिंद ने सपोर्ट किया था, उसका असल मुद्दा यह था कि हम अपनी रियासत के अंदर एक अच्छे गवर्नेंस को और फैसिज्म के मुकाबले में पॉजिटिव सेक्युलर फोर्सेस को आगे लाए। लेकिन मौजूदा हालात जो हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें रियासत की कांग्रेस गवर्नमेंट बतौर खास हमारे सीएम ऑनरेबल रेवंत रेड्डी साहब को बहुत विजिलेंट इक़दाम देने होंगे। अभी तक कई काम तो उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। हम उम्मीद भी उसी लिए हैं कि रियासत की फिजा को बिगाड़ने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और वनप्रति मेदक और जेलों जैसे वाक़यात यहाँ पर आवाम की जो हमारी मोहब्बतें हैं उसको तोड़ने में अहम रोल अदा करती है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सीएम और कांग्रेस गवर्नमेंट अपने पावर को भी इस्तेमाल करेगी कि लोगों के दरमियान कोई जो है ना इंजस्टिस ना हो। मैंने ये बात हमेशा कही है प्रेस में कि कोई भी कल्प्रिट, वो चाहे किसी भी मसहब से ताल्लुक़ रखता हो, वो कल्प्रिट कभी भी तारीफ का मुस्तहक नहीं होता है और उसको किसी कम्युनिटी के साथ जोड़ना बहुत बुरी बात है। अगर चोर है, डाकू है, जानी है, रेपिस्ट है, तो उसके लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है और जुडिशियल सिस्टम है जिसके तहत पूरी सज़ा होनी चाहिए, ना कि उसकी बुनियाद पर हम उन मासूमों को जो उसकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं नुकसान पहुँचाएँ। ये बहुत गलत चीज़ है जो इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं और हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत तेलंगाना अपना किरदार अदा करे। मज़ीद मैं आपको बताऊँ कि हाइड्रा प्रोजेक्ट जो इस वक्त हमारी रियासत के अंदर जारी है, पानी का जमा करना और नदियों और तालाबों के निज़ाम को बेहतर करना और हैदराबाद जैसे मुकाम पर जो है ना एक खूबसूरत निज़ाम ही नहीं बल्कि पानी का बेहतरीन इंतजाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। जिन लोगों के मकानात को तोड़ा जा रहा है उसूल उनका नहीं है। जो गवर्नमेंट उनको वहाँ पर तामीर की इजाज़त दी और जिन लोगों ने उनको ये मकानात बेचे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो लोग अपने हार्ड एंड मनी को लेकर जो है ना पूरी ज़िंदगी की कमाई को लेकर एक फ्लैट या एक रहने का ठिकाना अगर उन्होंने अपने लिए पैदा किया तो उसके खिलाफ हुकूमत का इक़दाम ऐसा लगता है कि जालिमाना और जारहाना इक़दाम है। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि चाहे वो मज़हब कोई भी हो, किसी का भी, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, जिनके मकानात टूटे हैं, जिनके फ्लैट्स टूटे हैं, उनको गवर्नमेंट यकीनन उनका अल्टरनेट करे, उनका जो है ना कोई मसीहा बनकर उनका जो है उनकी मदद करे। लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई और उनकी औलाद के मुस्तक़बिल के लिए जो मंसूबे थे वो बुरी तरह से टार्निश हुए हैं। और ऐसे में ये भी है कि जो बड़े लोग होते हैं मुतासिर कम होते हैं। शहर हैदराबाद ने मरीजों के इलाज के लिए सौतेला सलूक। ज़राए के मुताबिक शहर हैदराबाद के एरागड्डे में वाक़ मेंटल अस्पताल में आउट पेशेंट मरीज़ों के इलाज के लिए रिश्वत तलब की जा रही है। ऑफिस सब ऑर्डिनेट क्लर्क और दीगर स्टाफ की जानिब से रिश्वत का बाजार गर्म है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और आला अहदेदारों को चाहिए कि इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए कोई ठोस इक़दाम किए जाएँ। गरीब मजबूर अफराद इस दवाखाने से रुजू होते हैं क्योंकि इस दवाखाने में मियारी इलाज किया जाता है। अब देखना ये होगा कि आला अहदेदार क्या कार्रवाई कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी ज़िले में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल कॉम्प्लेक्स का रखा संग बुनियाद। हाइड्रा और मूसी प्रोजेक्ट पर अपोजिशन के एतराज़ात, हुकूमत ने असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने का किया फैसला। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने डीएसपी की हैसियत से आज संभाल लिया चार्ज। दशहरा त्यौहार के बायस चोटुप्पल के करीब हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक जाम।
रियासत भर में आज 28 इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल्स का रखा गया संग बुनियाद। बांग्लादेश और टीम इंडिया के खिलाड़ियों की हैदराबाद आमद, दोनों टीमों के दरमियान कल होगा मैच। तेलंगाना उर्दू एकेडमी में बदनज़मी उरूज पर, चेयरमैन की अदम दिलचस्पी से अमला और अदबी तबका परेशान।